you want to discuss in this? Please tell me. सर इसलिए समझ नहीं आ रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है. There is these two words, opening and closing. What do you understand by these two terms? Can you tell me? Whatever your understanding is. Opening and closing. Yes, please. Very good, very good. So anything if we are just calculating, assessing, finding out, presenting in the beginning of the day, beginning of the year, it may be, see, as far as this accounting year if we talk about, or the year we talk about, so it's basically categorized in three ways. एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, है ना. फर्स्ट जनवरी हैप्पी न्यू ईयर, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द अकाउंटिंग, ओपनिंग ऑफ द ईयर, एंड 31st December, that is the closing of the year. Opening of the year, closing of the year, opening of the year, closing of the year. So as far as the accounting is concerned, we consider the financial year. So financial year start with the 1st April and end on the 31st March. So if anything you are calculating, anything you are presenting, anything you are talking about on 1st April, that means you are talking about the opening balances. Whatever the balances are there on the 1st April, that is the opening balances, beginning of the year. And when we are talking about on 31st March, so that is the closing, that is the end of the accounting year. So this is the closing. That you would be talking about the closing balance of anything. Alright. So when we talk about this, asset is equal to liability plus capital of accounting equation. So it may be opening assessment or it may be the closing assessment. Okay, it may be the opening assessment or closing assessment. Means opening assessment, opening assets, opening liabilities, opening capital. There is a closing assessment, closing asset, closing liabilities, closing capital. Opening and closing, there is nothing, just only a particular date when we are going to assess it. हम किस date को इसको assess कर रहे हैं, that is only the thing is there, nothing else. ठीक है? Opening in the beginning of the year, closing that is end of the year. अगर हम लोग, if we are talking about this accounting equations, asset is equal to liabilities plus capital. So if we are considering the opening, so we have to take all the stuff opening, that is opening assets, opening liabilities, opening capital. If we are considering the closing, we have to consider the closing assets, we have to consider the closing liabilities, we have to consider the closing capital. Never makes कि आपने assets opening ले लिया, लेकिन liabilities closing ले लिया, या capital opening ले लिया, assets closing ले लिया, it will not. So opening and closing is nothing but a step, that is कि आप किस date को उसको assess कर रहे हैं. That's it. Okay. Hopefully this is clear. Now students, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि accounting equation महज एक chapter नहीं है. Please do understand. It is not only a chapter what is going to assess in the examination for 2-3 marks या 3-4 नंबरों के लिए. It is a complete approach for a concept. Being a commerce students, you need to have this. Till the time you are studying, till the time जब तक कि आप commerce पढ़ रहे हैं, जब तक कि आप double entry system पढ़ रहे हैं और practically आप उसको practice कर रहे हैं या फिर when you are doing it. So this is very important to understand. Please mind it. Okay, the approach and the concept is very, very necessary. So if we talk about the assets का एक opening balance हो सकता है, closing balance हो सकता है. How is it?
Simply I'm just giving you an example. Like yes, this chair I am having. अगर मैं इसका वैल्यूएशन 1 अप्रैल को कर रहा हूँ कि ठीक है 1 अप्रैल को 500 है और 31 मार्च को इसका जो वैल्यू है वो 400 है, बिकॉज इन बिटवीन दिस 100 रुपीज ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड. सो द चेयर इज चेयर. इसके फिजिकल एग्जिस्टेंस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग डेट पर जब हम इसको असेस कर रहे हैं तो कुछ और भी चीजें कंसीडर होती है. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. On 1st April, it was the opening balance. It may be the opening balance of year or opening balance of means the opening balance of starting of a business. ठीक है. Closing at the end of the year. Maybe some consideration is there in between this 12 months of accounting year, from April to March 31st. If it is a start from 1st April 2021, so this will end on 31st March 2022. Okay, hopefully you are able to understand. Equally applicable for assets, liabilities, and capital. Any questions, students, you have? Assets में opening और closing के बीच में क्या-क्या चीजें हो सकती हैं? Assets के opening और closing के बीच में purchase हो सकता है, sell हो सकता है, depreciation हो सकता है. ये मेरे पास में स्टार्टिंग में एक चेयर थी, बाद में मैंने 2 और खरीद ली, फिर एक चेयर को बेच दिया, फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया और क्लोजिंग बैलेंस. तो अल्टीमेटली व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31st मार्च, और व्हाट इज द वॉल्यूम दैट मीन टू से द मेजरेबल यूनिट, दैट इज अमाउंट, फिगर, है ना, कितना है वो. सेम कंडीशन विद द लायबिलिटीज. व्हाट इज द ओपनिंग लायबिलिटीज? हमने बैंक से लोन ले रखा है 5 लाख रुपीस का, दैट इज द ओपनिंग लायबिलिटीज. In between we have paid 1,50,000 rupees. फिर उसके बाद में हमने एक और लोन ले लिया of rupees 10 lakh. So what is the closing balance? वैसे ही कैपिटल में कुछ एक थोड़ी सी चीजें ज्यादा होती है. So let's talk about the capital. कैपिटल अगर स्टार्टिंग में बिजनेस के स्टार्टिंग में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दैट इज द ओपनिंग कैपिटल, या फिर अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो अकाउंटिंग ईयर का स्टार्टिंग या बिजनेस का स्टार्टिंग. ठीक है. ओपनिंग दैट मीन टू से द बैलेंस इन द बिगिनिंग. क्लोजिंग दैट इज द बैलेंस एट द एंड. ओपनिंग दैट इज बैलेंस इन द बिगिनिंग, क्लोजिंग दैट इज बैलेंस एट द एंड. Rather than considering only a part of the chapter that is recording of transaction, accounting equation, इसको थोड़ा सा broader aspects में समझने की कोशिश करें, है ना. क्योंकि चैप्टर तो ये 2-3 नंबर के लिए एसेस होगा एग्जाम में, लेकिन ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच आपके लिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लीज माइंड इट. ठीक है. सो राम हैज स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ रुपीस 1 लाख. राम ने 1 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करके बिजनेस स्टार्ट किया. दिस इज द ओपनिंग कैपिटल. व्हाई इट इज ओपनिंग कैपिटल? बिकॉज़ ही हैज स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख. और maybe the capital on the 1st April 2020, let's say कि 1st April 2020 को राम का जो कैपिटल था 1 लाख. There is no more much differences in this. Opening capital means opening capital in the beginning of accounting year or opening capital in the beginning of the business. अब उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? Add additional capital. अगर और एडिशनल कैपिटल लगाया तो दिस विल बी एडेड. ठीक है. फिर उसके बाद में इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज देयर सो दैट विल बी एडेड. बिजनेस को कोई प्रॉफिट है, इनकम है ना, या रेवेन्यूज है, इनकम और प्रॉफिट तो सबसे हम कंसीडर कर ही सकते हैं, है ना. दिस प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज है, सो दैट वुड बी एडेड. क्या-क्या चीजें कैपिटल को कम कर सकती हैं? So drawing, if the owner has withdrawn something for personal use, or interest on drawing is there, so due to this also the capital will decrease. Business को कोई loss है, expenses हैं, so due to this it will decrease.
So these are the things which affect the capital. Now this is very important कि which balance we are picking up और किस balance पर हम calculations कर रहे हैं. ठीक है students, this is a very important term. उससे भी ज्यादा जितना important हम इसको समझ लें, है ना? Because it's all about on which date you are assessing. Now I correlate with the approach that is going concern concept. Business will go for infinite period. Business infinite period के लिए चलने वाला है. तो हम ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं, हम ये जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर किसी सेगमेंट पर काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर पर काम कर रहे हैं, है ना? हो सकता है कि वो 1 अप्रैल 2020 से लगा करके 31 मार्च 2021 हो. दिस इज जस्ट 12 मंथ. तो जो कुछ भी हुआ है इस 12 मंथ में हुआ. ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा, प्रॉफिट कितना हुआ, ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, और लॉस या बिजनेस को लॉस या एक्सपेंसेस कितने हुए, और साल के आखिर में कैपिटल कितनी बची है भाई. तो at the end the capital is 2,90,000. This is a closing balance we can say. Asset स्टार्टिंग में हमारे पास में फर्नीचर था 1 लाख का, 2 लाख का और खरीद लिया, 50,000 का फर्नीचर सेल कर दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया. एट द एंड व्हाट बैलेंस वी हैव. स्टूडेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड the approach of opening and the closing balances. Opening and closing balances is nothing but the measurable or the value of that asset, liabilities or capital on that particular date on which you are just making the assessment, evaluations, analysis, summary or whatsoever. So it seems very simple, these two words, opening and closing, but we need to understand it plays a very, very important role. Hopefully you have understood this. If you have any question in this, please ask. Now students, accounting equations हम लोग जरा स्टार्ट करना चाह रहे हैं आज से. अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है आपको, if anything not understood, not clear, तो आप बताएं. Yes please. Am I audible? Visible? Yes sir. Yes please. Yes sir. तो बताएं इसमें कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कोई टॉपिक जो हम समझना चाह रहे हैं. Yes, Samrit, Mohit and all other students. नहीं सर, आ गया. अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी ग्रेवाल में लास्ट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये हमने सॉल्व किए, करते आ रहे हैं हम ये क्वेश्चंस. Shall I explain any questions? I can explain you if you just ask me. Or whether you are able to do कौन it. से रिकॉर्ड करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन वाले ना? ये लास्ट में जो दे रखे हैं. हाँ सर, ये आते कर पा रहे हैं हम ये क्वेश्चंस. इसमें टेबल नहीं बनानी, टेबल भी बना सकते हैं, टेबल बना करके भी कर सकते हैं, टेबल बना करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने क्या कहा कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, दिस इज मोर देन जस्ट अ चैप्टर और अ टॉपिक, बिकॉज़ इट इज गोइंग टू गिव यू द overall approach towards the debits and credit and the accounting equations, the relations of assets, liabilities and capital. Yes please, any questions from anyone? सर ये क्वेश्चंस कब तक सबमिट करने हैं? You try to submit it soon as possible. Questions हमें कौन से सबमिट करने, जैसे मैंने कल ही आपको बता दिया था, कल बताया था, परसों बताया था कि एनसीईआरटी के एनसीईआरटी वाले है ना, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, those questions we have to submit. This all are just for the practice. References की सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए है. सबमिशन जो भी है वो एनसीईआरटी का कंटेंट. To be very clear. Okay. राइटिंग वर्क जो भी है वो एनसीईआरटी का कंटेंट है. रेफरेंस केवल प्रैक्टिस के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है? यस. एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? Shall I explain few questions of accounting equation from references? If you tell me, I can explain you. Else otherwise we start with the journal entries, or we can start it from tomorrow, as you find yourself comfortable. But make sure the learning happen
हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर डीलिंग फर्स्ट टाइम विद ईच अदर। ठीक है, सो आई डोंट नो, अगर मैं आपको पिछले 4-5 सालों से पढ़ा रहा होता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, है ना, बट यू कैन अंडरस्टैंड। यस प्लीज टेल मी, शैल आई एक्सप्लेन फ्यू मोर क्वेश्चंस? समझ में आ गया सभी को? सर इसमें सर ये Are you there क्वेश्चन with है ना us? लास्ट में, फाइंड आउट द Yes, sir. कैपिटल ऑन 31st मार्च, लॉस कितना हाँ, हुआ, हाँ। वो भी करने हैं। पीएस ग्रेवाल में है ये। हाँ, सर वो समझा दो ना एक बार, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन। बिल्कुल बता देते हैं बेटा मोहित, थैंक यू, आपने बोला एट लिस्ट, है ना, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। उसमें से 1-2 क्वेश्चन अभी है, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं उनको। और बाकी स्टूडेंट्स, है ना, थोड़ा सा अगर बोलेंगे ना बेटा तो मुझे समझ में आएगा, बिकॉज आई एम, है ना, हम लोग भले ही स्कूल में थे, आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं भी शायद आपको जानता हूँ, लेकिन यू नो वेरी वेल कि आई एम जस्ट टेकिंग द क्लासेस इन 11th and 12th एंड मे बी किसी एडजस्टमेंट में प्रॉक्सी पीरियड में आई वुड हैव बीन गिविंग योर क्लास, बट it's needed a proper communications to understand each other, all right, but make sure, देखो 12th में आपका परफॉर्मेंस 11th के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और ये स्टार्टिंग है। अगर यहां से कोई चीजें मिस हो रही हैं देन यू विल स्ट्रगल इन 12th। 11th में भी करोगे, 12th में भी करोगे, इसलिए डोंट मिस एनीथिंग। नहीं आ रहा है तो बोलो कि सर ये नहीं आ रहा है, इसको प्लीज समझे, है ना, मुझे खुद से समझ में नहीं आएगा जब तक आप बोलोगे, है ना। हाँ, मैं आपको पिछले 2-4-5 सालों से पढ़ा रहा होता, मुझे पता होता है कि भाई मोहित का नेचर कैसा है ना, नमन को कैसे समझ में आता है, या सुदेश को कैसे समझ में आता है ना, या संजना को कैसे समझ में आता है, क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करती है, ये करते हैं, ये थोड़ा सा मुझे आइडिया होता तो बात समझ में आती। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज माइंड इट। चलिए इसमें से पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, है ना, रैंडमली मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशंस तो हमें समझ में आ गया, कोई ट्रांजैक्शंस की अगर डीलिंग्स नहीं आ रही है तो मुझे बताना, है ना। इसमें अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 20, ये ओरली फॉर्म हो जाने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या है इसमें, देखिए, इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,40,000 एंड द लायबिलिटी आर, है ना, liabilities are 80,000. Calculate the total assets of the business. We know very well asset is liabilities plus capital. तो अगर capital 140 है और liabilities 80 है तो 8 4 12, तो total assets हमारी कितनी हो जाएगी, 2,20,000। ठीक है, तो 2,20,000 रुपीज इज व्हाट आवर assets। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये इस रिलेशन के बेसिस पर फाइंडिंग आउट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। When the two information is available, we need to find it out the next information. Hopefully it is clear, Mohit and all the students. यस सर। यस ठीक सर। है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसमें से अपन क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखी है 40,000 की कैपिटल हमें दे रखी है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए 25,000, और हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दे रखा है कि भाई रेवेन्यू कितना है, 50,000 का रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं 40,000। अब देखो कैपिटल है, क्रेडिटर्स हैं और रेवेन्यू एक्सपेंसेस दे रखा है ना। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का रिलेशन हमें मालूम है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहां पर ऐड होता है, कैपिटल में। ठीक है, तो रेवेन्यू है 50,000, एक्सपेंसेस है 40,000, प्रॉफिट हुआ हमारा 10,000 रुपीस का, जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो 40,000 का कैपिटल पहले से था, 10,000 का प्रॉफिट ऐड हो गया तो 50,000 कैपिटल हो गई। लायबिलिटी 25,000 है, वी नो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज है कितनी, 25, और कैपिटल कितनी है 50,000। सो 50 प्लस 25, असेट्स हमारी हो गई 75,000, है ना। इसको कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में सॉल्व नहीं करना है, हमें रिलेशन समझना है कि कैसे असेट अगर है तो हम लायबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कैपिटल है तो
capital or liabilities है तो we can find out the asset. If asset and liabilities is given, so we can find out capital. If asset and capital is there, so we can find out the liabilities. क्यों? क्योंकि आगे जब हम कुछ टॉपिक सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, so sometime it goes through the liability approach. मतलब you would be given the information of liabilities side, or you would be given some information about the asset side. So sometime you will have to work on the basis of liability approach, or sometime you will have to work on the assets approach. But we know very well that the asset is always equal to liabilities plus capital, so that what, though one side information would not be there, but we would be able to calculate with the help of fundamental approach of accounting equation. Okay, चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, we have some time. जैसे कि ये इसमें देख लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 ऑन पेज नंबर 5.22. मोहन, ध्यान से इसको समझेंगे अपन, है ना, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चंस, करते आना चाहिए, मेक श्योर. मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल. देखो डेट दे रखी है, इसका मतलब कि ओपनिंग क्लोजिंग वाला अप्रोच है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड. Mohan started business on 1st April. 1st April मतलब opening, है ना? That is opening. सारी information जो है वो हमारे पास में हमारा opening में है. तो capital 25,000. Capital है 25,000 की. And a loan of 12,500 borrowed from Shyam. Loan मतलब liability 12,500. During 2021, he had introduced additional capital of 12,500. अब ये middle of the year में आ जाओ, additional capital है कितने की? 12,500 की. He had withdrawn 7,500 for personal use. So 7,500 is a drawing. On 31st March 2021, अब ये information हमें दे रखी है 31st March की. That is the closing information. है ना, मैं आपको ऐसा इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको इसकी अप्रोच क्लियर हो कि क्या चीजें हैं इसमें, है ना. प्रॉफिट मेड और द लॉस अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी, ऑन 31st मार्च हिज असेट्स वर 75,000. देखो क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बिजनेस के पास में 75,000 का असेट्स हैं. Find out his capital as on 31st March 2021, the profit made or loss incurred during the year 2021. अब हमें ये पता करना है कि कैपिटल कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है और प्रॉफिट कितना हुआ है 2021. ठीक है, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. तो देखो पूरे क्वेश्चन में हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है. मैंने आपको पहले बता दिया ओपनिंग क्लोजिंग का अप्रोच, ठीक है. कैपिटल में कौन कौन सी चीजें ऐड लेस हो सकती है, वो सारी कुछ चीजें. अब हमें क्या समझना है स्टूडेंट्स, देखो नाउ यू स्टार्ट एनालाइजिंग द थिंग्स कि हमारे पास में ओपनिंग इंफॉर्मेशन क्या क्या है. भाई स्टार्टिंग में हमारी कैपिटल कितनी थी 25,000. स्टार्टिंग में कैपिटल थी 12,500 का लोन था, ठीक है. मतलब हमारी स्टार्टिंग में, तो अगर हम असेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारी असेट है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू असेट. अपन बोल सकते हैं A is equal to liabilities plus capital. तो 25 plus 12,500 मतलब अगर हम देखें तो 37,500 की असेट्स थी हमारी स्टार्टिंग में, ठीक है. हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना. फिर क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल आ गई 12,500 की, फिर 7,500 का ड्राइंग आ गया. और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है. फिर बाद में क्या बता रखा है कि असेट 75,000 की है. अब दोनों में से अगर एक भी चीज होती तो हम थर्ड आइटम्स वी कुड हैव कैलकुलेट. तो क्या हमारे पास में कैपिटल और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है? सर लायबिलिटी है ना 12,500. क्या बेटा? सर लायबिलिटी 12,500 की दी है ना. वेरी गुड, शाबाश, है ना. एक हमने लोन ले रखा है 12,500 की लायबिलिटीज हमारे पास में है ना. अब देखो स्टार्टिंग में तो थी लेकिन लास्ट में है कि नहीं,
तो हम अज्यूम करेंगे कि लास्ट में भी है, क्योंकि अगर उसने पेड आउट कर दी होती या फिर उसका पेमेंट कर दिया होता तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि भाई लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। अब अगर मान लो लाइबिलिटीज स्टार्टिंग में थी मतलब लास्ट में भी होगी, तो अपन अज्यूम कर लें कि हमारे पास में 12,500 की लाइबिलिटीज भी हैं। तो सिंपल, अगर असेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं तो कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं फिर, है ना। असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो अगर असेट 75,000 की है और लायबिलिटीज 12,500 की है तो कितना होगा ये? 62,500। 62. ओके, 62,500 है ना, 62,500 स्टूडेंट्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि हमारी ओपनिंग कैपिटल थी 25,000, हमारी क्लोजिंग कैपिटल है 62,500। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कौन कौन सी चीजें आई होंगी? तो एक तो एडिशनल कैपिटल है, एक ड्राइंग है, और एक और चीज हो सकती है या तो प्रॉफिट या लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग दे रखा है हमें, बस हम ये पता कर लें कि अगर कैपिटल एक्सेस है मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। अगर क्लोजिंग कैपिटल लेस है देन वी विल फाइंड आउट कि समथिंग इज अ बिजनेस हैज सफर्ड अ लॉस। तो अब अपन इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ये सारी कुछ चीजें दे रखी है और यहां से इसको सी स्टूडेंट्स, मैं इसको इस तरीके से है ना एकदम आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि व्हेन यू आर सॉल्विंग द अदर क्वेश्चंस तो यू कैन अंडरस्टैंड। हम इसको टेबल बना करके अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक इसकी एक सिंपल टेबल बना सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल इज दिस लेस ऐड दिस आइटम एंड दिस कैन बी डन, बट एट लीस्ट यू वुड बी एबल टू एनालाइज द थिंग्स एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल। सो क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से करते है ना, बाद में उसको मैं उसका रिवर्स ऑर्डर आपको बता दूंगा। तो भाई हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल थी कितने की? 25,000 की। अब एडिशनल कैपिटल ऐड होती है, तो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में और कितनी इंट्रोड्यूस की गई? 12,500, ठीक है, ये दो हो गया। तो 12,500 की एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल थी 25,000, एडिशनल कैपिटल थी 12,500, मतलब कैपिटल जो हो गई है वो हो चुकी है 37,500। उसमें से ड्राइंग भी हो गया, ड्राइंग देयर इज अ 7,500 रुपीस ऑफ ड्राइंग, द ओनर हैज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, ओनर हैज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो ओपनिंग कैपिटल 25,000, एडिशनल कैपिटल 12,500, drawing 7,500, so it should be 30,000. मतलब at the end the closing capital should be only 30,000. But what exactly the capital is? Closing capital is 62,500. Closing capital केवल 30,000 होना चाहिए अभी, लेकिन है वो 62,500। इसका मतलब इसमें और क्या चीज ऐड हुई हो? प्रॉफिट, प्रॉफिट, दैट्स इट। और एक और चीज यही हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में नहीं है, अगर होता भी तो माइनस होता, ठीक है। तो एडिशन में केवल प्रॉफिट है, मतलब एडिशन में इनकम या प्रॉफिट ही ऐड हो सकता है। तो द रिमेनिंग अमाउंट, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू कितना होगा? डिफरेंस 32,500 इज व्हाट? दैट इज प्रॉफिट ओनली, लाइक दिस। सर जो वो लोन लिया था 12,500 का वो नहीं गिनेंगे ओपनिंग कैपिटल? हाँ, तो ये लोन से तो अपन ने पता किया बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, ये जो लोन ले रखा है ना, ओपनिंग कैपिटल में नहीं करते वो क्या उसको ओपनिंग कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे? नहीं, ओपनिंग कैपिटल में क्यों ऐड करेंगे इसको, है ना। ये देखो, ये ओपनिंग अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारा? तो भाई कैपिटल है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में समझो, असेट
लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, 12,500 रुपीज का लोन था, 25,000 की कैपिटल थी, एज अ रिजल्ट 37,500 की हमारी असेट हो गई, है ना। तो लोन इज अ लाइबिलिटी, 25,000 इज अ कैपिटल, इज इक्वल टू, दिस इज द ओपनिंग इक्वेशन। ये हमारा क्या है, ओपनिंग इक्वेशन है। फिर इसमें क्या हुआ, 12,500 का एडिशनल कैपिटल ऐड हो गया, 12,500 का एडिशनल कैपिटल ऐड हो गया। अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन से मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन से कि 12,500 रुपीज का एडिशनल कैपिटल ऐड हो गया, 7,500 रुपीज का ड्राइंग हो गया, 7,500 रुपीज का क्या हो गया है, ड्राइंग हो चुका है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में जो भी हमने कोई गुड सेल किया होगा, whatsoever the things are there, but at the end अगर हम एडजस्टेड की बात करें तो ये होना चाहिए था 30,000, ठीक है, ये होना चाहिए था 30,000, 12,500 rupees of loan is as it is, but here as it is mentioned कि असेट जो है हमारे पास में 75,000 रुपीस की है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो 32,500 rupees is what? 32,500 rupees is only, it could be the profit, और ये 32,500 rupees या तो कैश के फॉर्म में एसेट्स में ऐड हुए होंगे, या तो डेटर्स के फॉर्म में एसेट्स में ऐड हुए होंगे, या किसी भी फॉर्म में ऐड हुए होंगे। सो दैट्स व्हाई इट बिकम 70, not in bracket, because this is the profit, so it will add. So like this it became the capital here 62,500, liabilities is as it is, liabilities पर कोई चेंजेस नहीं हुए, असेट्स में जरूर चेंजेस हुए। पहले हमारे पास में केवल 37,500 की असेट्स थी, 12,500 का कैश और आ गया, 7,500 का कैश चला गया इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग, और 32,500 के हो सकता हो कि कैश आया हो सकता हो कि डेटर्स आया हो, उधारी में सेल किया हो, व्हाटसएवर, लेकिन जो भी 75,000 रुपीस की असेट्स है हमारे पास में, 62,500 की कैपिटल, मतलब 12,500 की लायबिलिटीज हैं, मतलब 62,500 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एंड एडजस्टेड बैलेंस हमारा जो निकला था वो 30,000 है। तो अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, if the closing capital is more than the adjusted capital, that means to say it is a profit. Adjusted capital का मतलब, मैं बार-बार adjusted word यूज कर रहा हूँ, so adjusted capital का मतलब उसमें से हमने additional capital को प्लस कर दिया और ड्राइंग को माइनस कर दिया, that is called the adjusted capital, ठीक है। Adjusted capital is what? Additional capital is added, drawing is subtracted, interest on capital if it is there, so added, and interest on drawing is subtracted if it is there. That is adjusted capital. So adjusted capital is 30,000, where the closing capital is 62,500. So different. If it is positive, would be considered as a profit. If it is negative, then it would be considered as a loss. Okay, students. समझ में आया? तो देखो मैंने आपको इसको रॉ तरीके से भी उसको सॉल्व करके बता दिया, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में भी उसको सॉल्व करके बता दिया। अप्रोच उसका क्या है, दैट आल्सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 26, 24, 23 सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई टू गो थ्रू इट एंड मेक श्योर कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने से ज्यादा है हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए स्टूडेंट्स, बिकॉज इट्स लुक वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी जो अप्रोच है वो आगे आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हाँ चलो हमारे टीचर तो बोलते रहते हैं, सर तो बोलते ही रहते हैं कि सब इम्पोर्टेंट है, हर नए टॉपिक के साथ में बोलते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बट दैट इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। यस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? 2-4 मिनट का टाइम है हमारे पास में, एक आधा क्वेश्चन और बता दूं मैं। यस स्टूडेंट्स, हेलो, इज इट ऑडिबल? नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो बेटा देखो अगला जो पीरियड है ना, नेक्स्ट पीरियड आई वुड नॉट बी टीचिंग यू, है ना। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जो भी कॉल्स हो रहे हैं, आई वुड बी मेकिंग कॉल्स टू द पेरेंट्स, सो आई वुड नॉट बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट पीरियड। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट पीरियड में, है ना, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस,
हमें अगले पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है ना। हु आर देयर इन द क्लास, लेट मी चेक वंस। देवांश, कृष्णा, मोहित, नैतिक, नमन, रिदम। रिदम, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द क्लास एवरी डे? रिदम, हो आज क्लास में नहीं हो कि आपका डिवाइस ही क्लास अटेंड कर रहा है? Sir, I am. Sir, I was in the है ना? school बेटा, practicing. Sir, I was in the school practicing cricket with seniors. ओके, चलो, है ना। तो ऐसा हो तो मैसेज डाल दिया करो बेटा, ताकि हम आपको एब्सेंट नहीं करें, है ना। Okay. आप Okay, sir. एब्सेंट नहीं करने की वजह हम आपको उसको लीव शो कर देंगे। जैसे अक्षा भी वो इंडिपेंडेंस डे के प्रैक्टिस कर रही है, चाणक अमृत्य से वन स्टूडेंट इज देयर, सो शी हैज सेंड मी द मैसेज कि सर आई एम प्रैक्टिसिंग दिस, सो वी आर जस्ट मार्किंग हर लीव ऑन ड्यूटी, नॉट लीव ऑन ड्यूटी। Sir, ऐसा होता है ना कुछ भी है कि सर ऐसा होता है कि किसी 1-2 दिन मॉर्निंग में होती है, बाकी तो ज्वाइन कर लूंगा सर। Okay, okay. Naman, Samrit, Tisha. Tisha is also not joining the class regularly. Tisha, can you hear me? Yes, sir. है ना Tisha, you should also join the class regularly बेटा। समझ में आ रहा है properly? Yes, sir. Are you finding Actually, any difficulty? I was not well lately, so I wasn't Okay. able to do it. Okay, okay. So this I have already shown you students कि आपको इसमें क्या करना है ना। ये this document I have already sent. I think someone messaged me कि सर ये questions हमारे पास में NCERT के नहीं हैं। So you see this is the latest edition 2021। इसके बाद में भी NCERT ने इसके बाद का एडिशन रिलीज नहीं किया है, और फिलहाल इसमें जो है वही आपके सिलेबस में है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी आपका राइटिंग और सबमिशन वर्क है दैट वुड बी बेस्ड ऑन द NCERT। रेफरेंस में केवल प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, है ना। पर अगर आपने उनको भी अपनी नोटबुक में कर लिया है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। ग्रेवाल या और भी जो भी रेफरेंसेस आप यूज कर रहे हैं, बट NCERT इज मस्ट। ठीक है, तो इनके आंसर्स बनाएंगे हम लोग, विल मेक आंसर एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। कल से हम लोग यहां से क्वेश्चन नंबर 11 ऑन जर्नलाइजिंग के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। बट मेक श्योर कि उसके पहले ये सारी चीजें क्लियर हो जाए एंड डन इट। समृत वर आस्किंग फॉर द सबमिशन, बेटा सबमिट कर दीजिए आप जितनी जल्दी कर सकते हो इनको, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन Yes, फ्रॉम sir. एनीवन? नो सर। इसमें जो MCQs वगैरह दे रखे हैं दैट्स यू कैन सॉल्व डायरेक्टली इन द, है ना, दिस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आप डायरेक्टली इसी में सॉल्व कर सकते हो। ओनली राइटिंग वर्क यू हैव टू डू, fill in the blanks, match the pair, key terms or any other that you are not required to do। और आपकी जो रेफरेंसेस में भी दे रखे हैं, जस्ट लाइक ग्रेवाल सभी के पास में है, तो इसके जो एंड में जो दे रखा है मैं बताता हूँ आपको, है ना। वेरी शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। इनके नोट्स में, आपको नोटबुक में नहीं लिखना है इन सब चीजों को, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप चाहे तो अपनी इसी बुक में, सेम नोटबुक में कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। बट राइटिंग वर्क्स ऑफ ओनली